कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे। हाँ, वीडियोस ऑफ करें प्लीज। किसी का वीडियो ऑन है, प्लीज क्लोज ऑफ योर वीडियोस। तो भगवान अब आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि मैं चर और अचर दोनों में निवास करता हूं। हर जगह मेरा ही वास है। अगर ये बात हम लोग अपने जीवन में सुनते तो है ही, समझते हैं कि नहीं पता नहीं, बस हम बस फर्ज करो इसको मान ले। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि भगवान का ही वास हर जगह है और भगवान की इसी वाणी को हम लोग सच मान ले, सत्य मान ले और उसकी सुंदरता को समझ ले और उसी से ही हम लोग अपने जीवन में शुभ कार्य करते चलें, तो कोई दिक्कत है हम लोगों को? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी है। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं कि भगवान का ही निवास है कण कण में, चाहे चर हो चाहे अचर हो, और उसी मुद्दे को अपना संकल्प बना लेते हैं कि भगवान ही है जो कुछ है, तो हम शांति से जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे? हमारी शांति क्यों भंग होती है? Why does our peace gets disturbed? What is the main reason of our peace getting disturbed? देखो, peace, P, perception, P, perception अगर हमारे तरीके से कुछ काम नहीं हुआ तो हमारे पीस डिस्टर्ब हो जाती है। Whatever we perceive, we start to believe that, and then we want to receive that, and if that doesn't happen, then our peace gets disturbed. Yes or no, audience? Yes. बोलिए, yes or no? Yes. 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 Our Yes. peace gets disturbed Yes. because our perception is, we start believing on our perception, and then we don't receive that perception, that belief, then our peace is disturbed. Correct? So there are more reasons where our peace is getting disturbed. Videos off kariye please. I'm still seeing people. We have 5 P's. 5 P's. P. Peace, P. And we have 5 P's. Please note this down because this I'm going to discuss it right now. We have 5 P's which disturbs our life.
which upsets our life, which brings us down in our life. Penny, possessions, Penny. people, penny, possessions, people, position, and pleasures. Right? These 5 P's. And these 5 P's में जो भी हमारा परसेप्शन बनता है वही हमको हमारे पीस को डिस्टर्ब करता है. Correct? Yes, no? Yes? Now, penny. Penny disturbs us. If we have less, we are disturbed. If we have extra more than enough, it disturbs in the form of stress. How to handle it? What to do with it? So penny disturbs us in our psyche. Possessions. One possession, then 2, then 3, then 4, more and more and more, more. And if we don't get this more, we get disturbed. People influence us. First क्या बोला? Penny. Penny, possessions, people. People influences us. And we are influenced by people. Because man is a social animal. So we have to live with people. We have to get attached to them. We have to get hurt. We have to forgive. We have to move on. It's all have to. Then position. My status. My position. If I am CEO of some company and the work doesn't go as per my choice, then what happens? My peace is disturbed. And then pleasures. One ice cream I have, then I want to have another ice cream. And I know I'm not supposed to have, but I'm getting pleasure out of it. And when this pleasure is not fulfilled, then what happens? I start getting upset. So now you tell me, in these 5 categories, where is Arjun getting disturbed? Which category is Arjun lying with to get disturbed? People. 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 Two. People. People. People and there's one more. Possession. No. Position. No, position, Didi. Sorry. Position. Correct. Yes. Position. Correct. People and position. In these 2, he is disturbed at his peace level. Correct. So, now you check from the checklist what disturbs you the most. Penny, possession, people, position, and pleasures. What disturbs you the most? And declare it here in the chat. Think. 1 minute I'm giving you to think. People, Didi.
Just chat, just chat. I'll tell you what to do with it. Just People. chat. Okay. People, 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 people. People. Oh my God. Oh, everyone is saying about people. People and position. Okay. People. Okay, fine. Okay, fine. It's fine. Okay, no problem. Now, people. When we are disturbed by people and position, and mostly it is all people and position. Pleasures are very nominal, I feel. Possessions, I don't think, because now you must have outgrown this. But position and people disturbs us the most. Fine? Now, people and position are controlled by your perception. Whatever perception we have, even pleasures are very nominal, yes. So whatever pleasure, what did I say? Whatever perception we make for ourselves, whatever perception we carry in our mind, that is the perception which disturbs through the people or the position. Right? Do you understand this? Whatever the perception is, it is coming as your perception, whatever your perceptions are. Now suppose फर्ज करो आप एक समुद्र के पास हो, ठीक है? आप एक समुद्र के पास हो और आपका बच्चा वहीं खेल रहा है. Just imagine, just think. I'm just talking about perception. How experiences create your perception. आपका बच्चा वहां खेल रहा है और गलती से उसकी चप्पल चली गई समुद्र में. तो समुद्र ने जब उसका परसेप्शन दिखना हुआ तो बच्चे ने लिखा क्या? समुद्र गंदा है, समुद्र मेरा चप्पल ले गया, समुद्र चोर है, उसने मेरी चप्पल चोरी कर ली, उसने मेरी चप्पल उड़ा ली, उसने मेरी चप्पल बहा ली, जो भी whatever. तो उसका एक परसेप्शन बन गया कि समुद्र तो ऐसा है. और ये बात वो जिंदगी भर नहीं भूलता है, क्योंकि जब भी वो समुद्र के पास जाएगा उसको वो बात याद आ जाएगी कि मेरी चप्पल यहां गई थी. ठीक है? और वही एक फिशरमैन जो होते हैं, जो लोग जाके मछलियां पकड़ते हैं, वो लोग जाएंगे वहां, जाल फैलाएंगे, मछलियां लेंगे. वो क्या बोलेगा समुद्र को? समुद्र तो मेरा पालनहार है भाई, मेरी रोजी रोटी देता है मुझे, वो तो बहुत अच्छा है. तीसरा समुद्र में गोते लगाएगा और उसे एक मोती मिलेगा, तो क्या बोलेगा वो? समुद्र तो बहुत दानी है, कितना, देखो मुझे इतना सुंदर मोती दिया उसने. तो जैसे जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वैसे वैसे हमारे परसेप्शंस बन जाते हैं. तो व्हाटएवर वी परसीव, और समुद्र को देखो, समुद्र तो मस्त है, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो तो वैसा का वैसे ही है. तो बोलेगा तीन सेट जो सैंपल बनाया था तब क्या हुआ? ऑडियोज ऑफ प्लीज, ऑडियोज ऑफ. समुद्र तो वैसा का वैसे ही है ना, लहरें वैसी की वैसी आ रही है, सब कुछ वैसा का वैसी है, मस्ती से आ रही है, मस्ती से जा रही है.
कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस समुद्र को। तो आप अगर ये एग्जाम्पल मैं क्यों देना चाह रही हूं, परसेप्शन पे। कुछ भी बोलो, समुद्र तो मस्त है। तो अगर पीपल की बात जब आप कर रहे हो कि पीपल हमें डिस्टर्ब करता है या पोजीशन हमें डिस्टर्ब, पोजीशन तो चलो आपकी है पर्सनल, पीपल तो बाहर से है ना, बाहर के लोगों की बात है, तो तभी आप पीपल बोल रहे हो ना उसको। तो ये जो हार जीत, खोना पाना, ये सब जो बातें हैं, ये एक, अगर हम इसको खेल ले लेते हैं, we take it as a game, बिकॉज आज उसका परसेप्शन आपके प्रति जो आपको अपसेट कर रहा है, कल चेंज भी तो हो सकता है। तो उसकी कोई स्टैंडिंग तो है नहीं, कोई फिक्स्ड लॉ तो है नहीं। उसका जहां एक्सपीरियंस चेंज हुआ आपके प्रति, आपका परसेप्शन चेंज हो गया उसके प्रति। तो हाउ कैन पीपल डिस्टर्ब यू? हाउ? देखो, अगर ये जिंदगी है ना, ये जीवन अगर शांति से भरी होती, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हर वक्त सिर्फ शांत होते और सिर्फ पीसफुल रहते, संघर्ष नहीं होता हमारी लाइफ में। संघर्ष तो सबकी लाइफ में हुआ है, बड़े बड़े धुरंधरों की लाइफ में हुआ है। तो हमें संघर्ष से डरना नहीं है, हमें संघर्ष को समझना है। और फिर उसमें फिर कार्मिक थ्योरी आज आती है यहाँ फिर से, फिर उसमें 100% एफर्ट देके अनासक्त भाव से अपने कर्म करने हैं और फल की चिंता नहीं करनी। आगे फिर वही सेम बात। तो परसेप्शन हमारा चेंज हो सकता है, इसीलिए पीपल के साथ हमें, हेलो, हे ममता, सॉरी, इसीलिए पीपल के साथ हमें डिस्टर्ब नहीं होना। ए बी दैट ये जो हार जीत का खेल है, या वो परसेप्शन, हमें पीपल ने हमें दुख दे दिया, हमने उन्हें फॉरगिव नहीं किया, जो भी व्हाटएवर पीपल ओरिएंटेशन जहां भी है, वो सारी बाहर की दुनिया है, वो हमारी आंतरिक दुनिया नहीं है। वो सब टेम्पररी है, सब बाहर की बातें हैं। और वो भगवान तो खुद कहते हैं कि मैं सारी कुछ माया से ढक देता हूं। तो उस माया के जाल में ये पीपल हो, चाहे पोजीशन हो, चाहे पोजेशंस हो, चाहे प्लेजर्स हो, चाहे पेनी हो, कुछ भी हो, तो है तो सारी की सारी माया का प्रपंच। तो आज अगर हम सब शांति से जी रहे होते, तो मुझे बताओ कि जब जब जन्म होता है तब तो हम रोते हुए आते हैं, और जब हम जाते हैं तब सबको हम रुलाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम आते हैं तब रोते हैं, जब जाते हैं तब रुलाते हैं। तो ये रोना और रुलाने के बीच का जो संघर्ष है, वही तो जीवन है, यही तो हमें जीतना है। नॉट जीतना, अगेन दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, आई एम सॉरी, नॉट जीतना, इसी को ही हमें ट्रांसेंड करना है। इन्हीं परसेप्शंस को हमें त्यागना है। यही सारे परसेप्शंस जो हमें दुखी करें, वो परसेप्शंस को हमें अपने वोकैबुलरी, अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियसनेस, इन सब से हमें डिलीट कर देना है। हमारे कंप्यूटर ब्रेन से इन सब को हटा देना है कि ये सारी बाहर की चीजें हैं, ये सारी बाहर की दुनिया है, ये सारी आउटवर्ड वर्ल्ड है जो असत्य है, सत्य नहीं है। असत्य है क्यों? क्योंकि ये तो चेंज हो जाता है, ये ठहरता नहीं है।
और जो चीज चेंज हो जाती है उसके पीछे हम अपसेट क्यों हुए? क्योंकि हम अपसेट अंदर हो रहे हैं और ये हमारा बाहर की दुनिया हमें अपसेट कर रही है। इज इट नॉट? बोलिए यस और नो। ये बाहर की दुनिया हमें हमारे अंदर की दुनिया को डिस्टर्ब कर रही है। और ये हमारी अंदर की दुनिया किसकी है? किसकी है ये अंदर की दुनिया? बाहर की दुनिया हमारी नहीं है, लेकिन ये अंदर की दुनिया तो मेरी है भाई। My inner space is mine. I allow. I am in allowance of getting myself disturbed because of these 5 P's. For what I make the perception, and then I disturb my peace. Thank God अर्जुन को तो खाली 2 ही चीज में डिस्टर्बेंस हो रही थी और वही उसका परसेप्शन बना और वही उसको डिस्टर्बेंस हुआ और उसी का ज्ञान भगवान ने उसे दिया। उसी का ज्ञान दे रहे हैं कि भैया ये तो सब माया है, इससे हटो। और ये माया मैं ही फैलाता हूं, ये भी कह रहे हैं साथ में। फिर भी अर्जुन के समझ में नहीं आ रहा। सोचो, थिंक। पर उस समय जो इंटेलेक्ट था और आज जो इंटेलेक्ट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। बट हमारी अपनी संपत्ति, एक मिनट, हमारी अपनी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाएं? आपकी तो अपनी संपत्ति है, यही तो आपको समझना है जी। उसे आपको ट्रांसेंड करना है। ट्रांसेंड करना है मतलब यू हैव टू गो बियॉन्ड। जैसे फर्ज करो अगर हम फियर और ग्रीड की बात करते हैं, जो हमारे मेन इमोशंस हैं, जो हमारे पीस को डिस्टर्ब करते हैं, बिकॉज इन्हीं 5 चीजों में भी फियर एंड ग्रीड ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ग्रीड ऑफ समथिंग और फियर ऑफ समथिंग। People disturb you or upset you or hurt you because you are in fear of something. Fear of loss, fear of getting hurt, fear of not forgiving. Some fear. Penny and possessions में क्या आएगा? Greed आएगा। Position में क्या आएगा? Greed आएगा। Pleasures में क्या आएगा? फियर एंड ग्रीड दोनों आएगा। तो यही दोनों इमोशंस ये सब में रहेगा, क्योंकि यही तो बेसिक इमोशंस है जो हमें नीचे लाते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को खराब करते हैं। तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर कैसे बढ़ाएंगे? इसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा। भगवत गीता की बातें सुन के, उपनिषद पढ़ के, चैंटिंग करके, दैट्स हाउ यू हैव टू सैंक्टिफाई योर energy. I'm not talking of purification of soul, because then tomorrow you'll ask me what is soul. I'm just simply saying purification of your spiritual energy. That's it. That's it. So for that, who's stopped us from being joyful? कौन हमें रोका है कि तुम खुश मत रहो भाई? जब बच्चे थे तो बहुत खुश थे हम लोग। जब हम 2 साल के थे, 1 साल के थे, 4 साल के थे, हमें तो पता ही नहीं था कि दोष होता क्या है, दुख होता क्या है। We didn't know. We were so happy. But now we become sad, we become upset, we become hurt. क्यों? Why? Because whatever, what happens with us, whatever we are deprived of, that becomes our highest goal. Suppose ये 5 चीजों में से something we are deprived of, then we want that as our highest goal in our life. And then either we will know how to handle it or we will not know how to handle it.
So if we know how to handle it, it becomes development, it becomes growth, it becomes very easy for us because you solve the maths problem, you found the solution. But suppose if it is not able to handle, then what happens? Suppose if it doesn't handle, then what happens? Then we get upset. Then we get disturbed. Then we get hurt. And we spoil our beautiful, magnificent, unique frequency, what we are born with. Then we become pessimistic. Then we become negative. Now tell me, what is the difference between being pessimist and being optimist? Audience? What is the difference between optimistic person and a pessimistic person? Optimistic person always thinks good. जो होगा अच्छा होगा. Pessimistic हर अच्छी चीज में negative दिखाई देता है उसको. Okay. And any circumstances he'll feel negative. इसमें तो ये होगा, डर लग जाएगा, अरे ये ना हो जाए, अरे वो ना हो जाए. But if it's positive, तो अरे this will go, this too shall pass. ये attitude होगा. Yes. Optimistic person is always happy, joyful, peaceful. And then whatever happens in life, he will say, never mind, it'll pass off. It'll pass off. It'll go. वो डरता नहीं है, वो fear में नहीं रहता. Optimistic person. And pessimistic person lives in fear, lives in negative, harmful thoughts to himself. And then when he is harmful to himself, the thoughts are harmful to himself, he becomes harmful to others also. And the same vice versa happens with optimistic person also. If I'm optimistic and I'm talking to you all, then you will also get optimistic because I'm talking to you all. So my optimistic frequency vibrations will go to you, and you will also, your mind's radar will receive that and make you also optimistic. So for example, जिसने plane बनाया, flights मतलब ये क्या बोलते हैं, aeroplane बनाया, वो तो बहुत optimistic था. But I would say जिसने सीट बेल्ट बनाई वो पेसिमिस्टिक हो गया मेरे लिए. समझे? जिसने एयरक्राफ्ट बनाई वो तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. पर जिसने सीट बेल्ट बनाई, क्यों बनाई उसने सीट बेल्ट भाई? Each one can take care of themselves. सीट बेल्ट बनाई कि कोई इमरजेंसी आ जाए या कुछ एक्सीडेंट हो जाए या वो बंदा गिर जाए. हाँ, तो there was something जो not a very niceful thought, not a very graceful thought. So he became pessimistic. And ठीक है, just a metaphor, nothing else. So सीट बेल्ट तो जरूरी होता ही है, but उसके रूट कॉज पे जाओ ना. उसके रूट कॉज पे जाओ कि क्यों बनाया उसने सीट बेल्ट. For safety. हाँ, safety. तो safety, yeah. Why? Something to be safe from, right? Yeah. Correct. So something from safe from. What was that something? Some accident. Something. Right? So every thought has a sponsoring thought behind. Right? So if he thought something negative, right? That's how he created the seat belt. We could have made some better chairs for all you know. This आदमी गिर ही नहीं सकता. That was a possibility. We're just discussing. We are not.
ऐसा नहीं है कि कल आप लोग फ्लाइट में जाएं तो अपना सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, आपको सीट बेल्ट में आपको फ्लाइट से उतार दिया जाएगा, ठीक है? So we are not play with all those laws, but we are just discussing the difference between the optimism and the pessimism. कि हम ऑप्टिमिस्टिक बहुत जगह होते हैं या सोचते हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो फियर है. तो pessimism and optimism, this goes together in us. ये कहने का मतलब है कि हम दोनों हमारे साथ साथ चलता है. Sometimes optimism will take over and sometimes pessimism will take over. Because अगर ये दोनों साथ साथ नहीं चलेगा तो माइंड की ड्युअलिटी कहाँ जाएगी? Whenever your mind is still, quiet, no ripples at all of thoughts, then you are very still. There is no duality at all. Minute your mind gets open, active, then what happens? You come into duality. So ये dual behavior तो mind का है ही. तो ये हम दोनों के साथ साथ चलता है, हम सबके साथ चलता है. अभी we may be very optimistic. हाँ वैक्सीन आ जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ बाहर निकल जाएंगे, oh we'll go there, we'll do here, we'll do da 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 da. But I know I hate to say but there is a small fear inside also. Otherwise, why should we take precautions? That means there's some fear, right? So pessimism is there inside. फिर आप बोलोगे precaution तो गवर्नमेंट का लॉ है, तो वो तो सेफ्टी बेल्ट भी एयरक्राफ्ट का लॉ बनाया था उसने. Are you getting what I'm trying to say? So Arjun also is pessimistic right now because of people and position. You understand? So उसको ऑप्टिमिज्म में भगवान ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको ट्रांसेंड करने कह रहे हैं. और उसके लिए अब भगवान ने क्या किया 5वें चैप्टर में 5वें अध्याय में कि 4 अध्याय में तो सिर्फ ज्ञान दिया है उनको. 5वें अध्याय में आके भगवान ने थोड़ा सा ध्यान बताया उसको कि ये अर्जुन जब तक स्टिल नहीं होगा तब तक ये ऑप्टिमिज्म पे नहीं जा सकता. स्टिलनेस बता रहे हैं अब वो. तो धीरे से अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू 2 मिनट शांति से बैठ जा और अपनी आंखें बंद कर ले और आंखें बंद करके देख तेरे अंदर क्या हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू. साक्षी भाव में उसको देखो, कोई जजमेंट मत करो, कोई सोचो मत, कुछ बोलो मत, सिर्फ अपने आप को एक मिरर के ऊपर देखो. और अर्जुन आंख बंद करता है और चुपचाप ध्यान में बैठ जाता है. 2 मिनट के ध्यान में उसने अपनी छवि देखी और वो छवि में उसने अपने आप को देखा कि वो तो टोटली ही इज इन टोटल मेस ऑफ हिज माइंड. उसके इतने विचार आ रहे, इतने विचार जा रहे कि ही वॉज टोटली chaotic. वो अपने आप को संभाल नहीं पाया. उसने 2 मिनट भी आंख बंद नहीं करी और 3रे मिनट में उसकी आंखें अपनी खोल दिया. Because he couldn't handle himself. He couldn't believe. अर्जुन, देखो यहाँ अगेन पोजीशन आ गई. अर्जुन जो मैं इतना फोकस वाला हूँ, इतना सेंटर्ड हूँ, इतना विवेकशील हूँ, इतना विचारपूर्ण हूँ, एंड
whatever designations he has given or people have given him, whatever. पर उसने अपने वो भी अपने आप को देख नहीं पाया. He had to open his eyes. तब भगवान कहते हैं कि यही तुम्हें करना है. तो आगे आएंगे, जब चैप्टर्स आएंगे तब भगवान जो ध्यान की विधियां बताएंगे, इट्स फैंटास्टिक, वेरी वेरी गुड. मतलब इतने छोटे छोटे क्रियाओं में योग की क्रियाएं जो आएंगी आगे, उसमें आप खुद देखोगे, फिर आपको लगेगा कि हाय मैंने अपना टाइम कितना वेस्ट कर दिया. बट नेवर माइंड, जब जागो तब सवेरा. It doesn't matter. For me, it doesn't matter. So just look upon when you sit still, bilkul no physical movement also. When you sit physically still, then आपका mind still होता है. जब तक आप फिजिकली स्टिलनेस में नहीं बैठोगे तब तक माइंड स्टिल नहीं हो सकता. ये भगवान प्रूफ कर रहे हैं. माइंड स्लोज डाउन. जैसे जैसे आप स्टिलनेस में बैठोगे वैसे वैसे माइंड स्लो डाउन होता चलेगा. जैसे जैसे माइंड स्लो डाउन होता चलेगा वैसे वैसे आपका जो ये सुख का जो भंडार है ना, खुशियों का जो भंडार हमारे अंदर है ऑलरेडी, वो खुलता चलेगा. My Pandora box of happiness will start opening. The more and more sitting in stillness shuts my mind. When my mind is shut, my Pandora box of happiness starts opening. And when my Pandora box of happiness starts opening, my life becomes very easy, very joyful. Then my perceptions, देखना बड़ी अच्छी बात आ रही है. Then my perceptions of this penny, possession, position, people and pleasures, everything changes. Everything will change. 5 बजे का आपको ध्यान रखना. Everything will change. Why? Why will it change? Because when we are happy, ध्यान से सुनना, when we are happy, जब हम खुश होते हैं तब हम किसी का दोष नहीं देख पाते, चाहे सामने वाला कितनी गलतियां करे, कोई भी हो वो, कैसा भी हो वो, हमें दोष नहीं दिखता. उस समय हम अपने ऑप्टिमम लेवल पे रहते हैं विथ ऑप्टिमिस्टिक व्यूज टू द अल्टीमेट. यस और नो? टेल मी. Yes. Isn't it? जब हम खुश होते हैं, when we are happy, when we are joyful, we never see किसी का भी दोष. क्योंकि हम जब खुश हैं तो हम तो अपने स्वभाव से अंदर हैं, हम तो स्वभाव से जुड़ गए. तो जब हम खुश रह सकते हैं और खुश रहते हैं, मतलब हम खुश रह सकते हैं, राइट? सो हम हैं खुश, खुश नहीं, क्या बोलेंगे, हम हैं सुख नहीं, हाँ, हम हैं सुख, हम हैं शांति, संतुष्ट. संतुष्ट नहीं, हम हैं, मतलब आई एम जॉय, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, नो आई एम नॉट, आई एम हैप्पीनेस, सॉरी, आई एम हैप्पीनेस, आई एम पीस, आई एम पीस, नॉट पीसफुल, आई एम पीस, आई एम हैप्पीनेस, I am pure awareness.
I am, I am, I am. I am joy. I am harmony. Yet we keep on seeking and seeking and seeking. फिर भी हम इसे ढूंढते रहते हैं, चाहते रहते हैं, वांट करते रहते हैं. We need all this. Why? Why do we need all this? Ask yourself. जब हम हैं ही, आज सुबह बड़ी अच्छी बात आई थी. I want to share it with you again, जो लोग सुबह नहीं थे. That do you need desires? Do you need desires to be fulfilled? No. No. We do not need any desires to be fulfilled. Why? Because everything in this world belongs to you. You have everything inside and outside. You have everything. So if you are a being in that having, then you are not doing anything. It is just happening. बड़ी अच्छी बात आ गई. Good. Very good understanding for us. So, how am I saying this? That we have, everything belongs to me, everything belongs to you, everything belongs to us. We have everything. Then why are we seeking anything? क्योंकि जब उपनिषद ये कहता है, वेदांत ये कहता है that the whole universe is inside you, then the whole universe belongs to me. Then everything in this universe is belonging to me, right? Or to you. Because उपनिषद तो झूठ नहीं कह सकता और वेदांत भी झूठ नहीं बोल सकता, भगवान खुद भी झूठ नहीं बोल सकते. तो ये बात तो है ना, that we have everything. We can, but we keep seeking things, right? We keep seeking things. Why? Because we have always been taught from our childhood to beg. Beg for a chocolate, beg for a toy, cry for a toy, then only my mother will come and give me. Cry for milk. Demand for milk, mummy आके देगी तब दूध मेरे को. Because always we have been taught to ask. But if I am belonging, not at this stage, Didi. Huh? Not at this stage of life. अरे no, not this. मैं तो बच्चों की, मैं तो conditioning की बात कर रही हूँ. How we are conditioned. But what we are trying to say is that you are a king. Please listen to this very carefully. You are a king. Live like a king, no matter what you have or what you don't have. Doesn't matter. But you are a king. King के पास क्या होती है? पूरी प्रजा होती है, पूरी सेना होती है. करेक्ट? राजा तो राजा होता है ना. राजा का काम क्या होता है? राजा का काम होता है कमांड करना. राजा का काम होता है कमांड करना. और तुम्हारे पास सारी बिलोंगिंग है. तुम्हारी सेना कौन हुई? जो लोग सुबह थे वो प्लीज मत बताइएगा. तुम्हारी सेना कौन है तुम्हारे साथ? Who is your commander in chief? कर्म इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां. तुम्हारा कमांडर इन चीफ कौन है? तुम्हारे विचार. तुम्हारा सेनापति कौन है? तुम्हारे विचार. विचार कहाँ है? माइंड.
माइंड। तुम्हारा सेनापति तुम्हारा माइंड है, और वो सेनापति तुम्हारे माइंड पे, तुम तो राजा हो, तो वो सेनापति कैसे काम करता है? तुम्हारे कमांड पे, करेक्ट? तो अगर तुम उस सेनापति को अपना कमांड में रखोगे तो वो कभी तुम्हें झुटलाएगा, कभी तुम्हें गिराएगा? कभी नहीं गिराएगा वो। So we have to learn how to command the mind and not become the slave of the mind. Then your chief minister is who? Your ego. Your ego is your chief minister or your prime minister, whoever. I will never say your ego is a president. No. Your ego is definitely less than the mind, on a downer version than the mind. And your body is your praja. तो अगर आप अपनी सेना को अपने कमांड में रखते हो तो तुम्हें अर्जुन बनने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना? तुम्हें अर्जुन बनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कृष्ण चल के आ जाएगा तुम्हारा सारथी बनने के, बिना कोई वॉर के। और क्या चाहिए बोलो? What else do you need? Lord will himself come to you. खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे खुदा बंदे से ये पूछे कि बता तेरी हस्ती क्या? What do you need? Tell me. I am there to serve you. ऐसा बोलेगा वो, क्योंकि वो तो भक्त वत्सल है ना। तो वहां तक पहुंचेगा कौन? राजा बन के पहुंचेंगे हम, बेगर बन के नहीं पहुंचना है हमको। And all the time we are begging for peace, we are begging for love, we are begging for harmony, we are begging for penny, for position, for people. Why? That's my question. Why? No. We will not allow our mind to beg in future. We will allow the mind to stay into my command and follow my command. Don't become the slave of mind, please. We were till now, not anymore. Make sense to you? Make sense to you or not? Tell me, yes or no? Didi, a question, please. My question? दीदी, हाँ, बट हमेशा अभी भी, फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस स्टेट में हम हैं, अभी भी तो हम चाह रहे हैं कि कोरोना हट जाए, तो अभी भी तो हम बेग ही कर रहे हैं। No, we are not begging. We are praying. We are praying. Again, we are requesting. वो हटेगा कि नहीं हटेगा वो हम लोग का डिसीजन नहीं हो सकता, और हम लोग को डरना भी नहीं है। जैसा चल रहा है चलने दो, उस पर ध्यान मत दो, बिल्कुल ध्यान मत दो उसमें। ये पॉलिटिक्स और मीडिया के चक्कर में हमें नहीं फंसना है, माय डियर गर्ल्स, हमें नहीं फंसना है। ये सारा पॉलिटिक्स और मीडिया है और कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू। और ये हटेगा कि नहीं हटेगा, इस पे लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम। We have to focus on our mental, physical, emotional, spiritual health. That's all. We have to focus on these 4 energies which we are born with. Just take precautions. That's it.
मस्ती से रहो, मस्ती, जैसे वो सागर नहीं रहता, मस्ती से जो जो परसेप्शन बनाना मेरे लिए बना लो, कोई बात नहीं, मैं तो अपने वही लहरों में उछलूंगा और लहरों में जाऊंगा और मैं मस्ती से बहूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें जो मेरे बारे में लिखना है लिख लो। दीदी हम गीता पढ़ रहे हैं कि अब एक इच्छा है हमारे अंदर कि हमारा ज्ञान बढ़े गीता के बारे। सो दिस इज समथिंग वी आर आस्किंग फॉर, आर्ट वी? Isn't this also a form of asking? This is not asking. This is no. This is not assuming. This is what will I say? This is not asking. You are not begging. तुम beg थोड़ी ना कर रही हो। नहीं। Learning, नहीं, not begging, but No, it's something we want. We are wanting something, na? Craving. Wanting for something which is going to give learning. Correct. Learning, yeah. More knowledge. We are gaining learning. ठीक है, यहाँ हम लोग कहीं भी कोई begging नहीं हो रही है, ये आपकी choice है. You are choosing. You are choosing to grow within yourself. That's your choice. So you're not begging anybody here. You have not begged me कि दीदी गीता की क्लास शुरू करो ना। और इसमें हर्जा क्या है मुझे बताओ? अगर तुमने सपोज बैग कर भी लिया, ठीक है, तो we have not reached the state of Buddha, right? We want to reach, or we want to learn how Buddha became the Buddha. वो बुद्ध कैसे बुद्धत्व प्राप्त किया वो हमें सीखना है, ठीक है? तो इसमें तो अगर कोई बेग भी करते हैं तो कोई अर्जा नहीं है। But we are not begging for those 5 P's out there, right? We're talking of those 5 P's which are disturbing us. Your learning will never disturb you. Got my point? Yes, Didi. Thanks. Thank you. So हम लोग कहीं भी कोई बेग नहीं कर रहे हैं। हमें बेगर्स नहीं बनना। हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम प्रे कर सकते हैं, हम विश कर सकते हैं। I am wishing all this to happen. I mean, all this to clear out. We can, as human beings, what can we do? We can only wish. We can stay away from all these thoughts. Because the more and more thought we are giving, that situation is becoming stronger and stronger.